सत श्री अकाल। लांघे ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਰੀਕੈਪ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੱਫੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜੱਫੀ ਨੇ ਖੂਬ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਨ, ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਪੀਸ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ। ਮੇਰੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੂਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ, ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। किसी ने प्यार से मुर्शद मेरे का नाम लिया, किसी ने प्यार से मुर्शद मेरे का नाम लिया, किसी ने प्यार से रहबर मेरे का नाम लिया, किसी ने प्यार से नानक गुरु का नाम लिया। तो मेरे दिल से जो उमड़ा सैलाब, तो जब मेरे दिल से जो उमड़ा एहतराम और अदब वो चश्मा बन के मेरी आत्मा से फूट पड़ा। यही थी मेरी खदा, अब जो चाहो दो सजा। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਖਟੈਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। अगर गुडविल मैसेजेस नहीं तो फिर वो बैट देने क्यों चले गए थे? बंद कर दो, उस बैट को वहां नहीं देना चाहिए था। हाई कमीशन बंद कर दो। फिर जो ईद के ऊपर लोग हाथ मिलाते हैं, फौजी हाथ मिलाते हैं कि नहीं, मिठाई एक्सचेंज करते हैं कि नहीं, बंद कर दो। तो फिर भाई जो बसें जाती हैं, दोस्ती की बसें जाती हैं, मत चलाओ। नेगेटिव बात करते हैं जिस बात की, तो भाई वाजपेयी साहब भी तो वहां दोस्ती का पैगाम लेके गए थे। फिर कारगिल का युद्ध 527 जवान मरे, तो क्या आप उनको ब्लेम करोगे? मोदी साहब बगैर परमिशन के वहां जाके नवाज शरीफ साहब को मिले, उन्होंने उनके साथ जफ्फी डाली, तो क्या भाई उनको राष्ट्रभक्त नहीं मानोगे? तो तब उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद पठानकोट हुआ था कि नहीं? और पाकिस्तान से आईएसआई वाले लोग यहां बुलाए गए थे कि नहीं? तो फिर उनको राष्ट्रभक्त नहीं मानोगे?
ਸਿੱਧੂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲਾਂਘਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਫਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਹ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਪੁਆੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਪੁਆੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਭੜਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਰਹੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੱਫੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਜੱਫੀ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे जफी इसलिए पाई क्योंकि लांगे दी गल हुई। अब यही थी मेरी खता, अब जो चाहे वो दो सजा। इस सिद्धू ने वार-वार दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 18 अगस्त को जफी पाई ते 21 अगस्त को मीडिया के रूबरू हुए। मैं इस बात को दोनों देशों का दुर्भाग्य समझता हूं कि विभाजन के बाद आपसी रिश्तों में सुधार नहीं हो सका। दोनों देशों के बीच निरंतर कटुता बनी रही और ऐसी कटुता जो करोड़ों लोगों के लिए आज भी अभिशाप बनी हुई। आज समूचे रूप से पाकिस्तान में प्रत्येक दृष्टिकोण से जो हालात बने दिखाई देते हैं वो अत्यंत दुखद, वो निराशाजनक है। आज जिस प्रकार से उस देश में दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों का जमावड़ा हो चुका है, उससे बहुत बार उस देश के भविष्य खतरे में पड़े प्रतीत होते हैं। इस अत्यधिक बिगड़ चुकी स्थिति पर बड़ी योजनाबंदी एवं दृढ़ निश्चय वाली सरकार और उसका मुखी ही असर अंदाज हो सकता है। ऐसी भावना आज दोनों देशों में हर स्तर पर विचरण करते हुए बहुसंख्यक करोड़ों लोगों के मन में है। यह कारण रहा कि समय समय पर हमारे देश के बड़े नेताओं ने इस दिशा में निरंतर पग बढ़ाने का यत्न किया है। आज हम उच्च व्यक्तित्व के मालिक अपने बिछड़े हुए राष्ट्रीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भेंट कर रहे, उन्हें सम्मानजनक ढंग से स्मरण कर रहे हैं। श्री वाजपेयी जी शांति का संदेश लेकर बस के माध्यम से 19 फरवरी 1999 को लाहौर गए थे। चाहे श्री वाजपेयी एवं उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी गहन मैत्री को अभिव्यक्त किया था,
परंतु उसी समय पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने कारगिल की योजना तैयार कर ली थी और भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उसे खदेड़ने के लिए श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री काल में कारगिल का युद्ध किया, जिसमें भारत के 527 जवान शहीद हुए। बाद में उसी परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में निमंत्रण दिया गया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं जनरल मुशर्रफ के बीच आगरा में 2 दिवसीय वार्ता भी हुई थी। श्री नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्क देशों के अन्य अध्यक्षों के साथ पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी को अपनी शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया था, वहां आने पर उनका मधुर स्वागत किया गया था। बस यही नहीं, एक आस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी सरकारी औपचारिकता और तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक पारिवारिक विवाह समारोह में उन्हें शुभकामनाएं भेंट करने के लिए अचानक लाहौर पहुंच गए थे। मेरी इस संक्षिप्त यात्रा में के संबंध में बहुत सी और निरंतर उंगलियां भी उठाई जा रही, आलोचना भी की जा रही है। जहां तक पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा साहब का संबंध है, इस बारे में मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मुलाकात इस्लामाबाद के शपथ ग्रहण समारोह में उस समय हुई थी जब जनरल बाजवा समारोह में पहुंचे। मुझे पहली कतार में बैठे देख वो गर्मजोशी के साथ मुझे मिले। मुझे मिलते ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक साहब के 550वें मुझे मिलते ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिवस पर भारत के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान की 2.5-3 किलोमीटर दूर स्थित करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को बिना रोक टोक पथ प्रदान करने के यत्न कर रहे हैं और पूरी तरह से संभव है। He also said we want peace. पहली पातशाही के करोड़ों श्रद्धालु हमेशा इस पवित्र गुरुद्वारे पे नतमस्तक होने के लिए तरसते हैं। माई भाई उस मिट्टी को चूम के, गुरुद्वारे के दूर 1 किलोमीटर दूर मिट्टी को चूम के नतमस्तक होके आंखें भर के वहां से वापस चले जाते हैं। ये दृश्य मैंने देखा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए जनाब इमरान खान की ओर से पहले भाषण में यह कहा गया कि पाकिस्तान में शांति के लिए सभी पड़ोसी देशों से बातचीत की जाएगी। इससे भी मेरी आशा की पुष्टि होती है। ऐसी ही आशाओं को लेकर मैं पाकिस्तान से लौटा हूं। अंत में मैं अपनी भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त करता हूं। किसी ने प्यार से मुर्शद मेरे का नाम लिया, किसी ने प्यार से मुर्शद मेरे का नाम लिया, किसी ने प्यार से रहबर मेरे का नाम लिया, किसी ने प्यार से नानक गुरु का नाम लिया। तो मेरे दिल से जो उमड़ा सैलाब, तो जो मेरे दिल से जो उमड़ा एहतराम और अदब, वो चश्मा बन के मेरी आत्मा से फूट पड़ा। यही थी मेरी खदा। अब जो चाहो दो सजा। एक एक करके कई सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। जफ्फी पई सी तां पिठ करके खड़ा हो जांदा। इस सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ने पूछा क्योंकि उन्हां दे अगे सवालां दी झड़ी लगी हुई सी। सिद्धू सफाइयां ते सफाइयां दे रहे सी। 21 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे नहीं पता कि वो उनमें से 4 बंदों को जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला हूं वो उनको जानता था। अब मुझे क्या पता कि वो 80 लोगों में कौन है
कौन नहीं, जहां उन्होंने मुझे बिठाया 5 मिनट पहले मैं वहां बैठ गया, और जैसे ही सेरेमनी शुरू हुई खान साहब अंदर आए तो उनकी जैसे ही नजर मेरे पे, सबने देखा कि उन्होंने हाथ दिल पे रख के यूं नीचे झुके, और फिर मैं भी झुका, और उसके बाद सेरेमनी के बाद वो मेरे पास आए, गले मिले और मुझे कहा शाबाश, बहादुर तुम, शाबाश। 2 बार उन्होंने कहा और गले मिले, शायद 2 बंदों को गले मिले, मेहता साहब को या मुझे, और उसके बाद वो सारा फंक्शन शुरू हो गया, टी सेरेमनी शुरू हो गई। सो ये आपकी उस बात का जवाब है। दूसरी बात कैप्टन साहब की, बोले जाखड़ साहब भी हैं, वो हमारे प्रधान हैं, बोले एआईसीसी से बड़े बड़े लोग भी हैं, बोले कैप्टन साहब भी हैं। तो लोकतंत्र में हर आदमी को अख्तियार है कि अपना पक्ष रखे, बोला मैं भी हूं। अब जरूरी तो नहीं कि अगर कैप्टन साहब ने मेरे खिलाफ बात की है तो मैं उनके खिलाफ बात करूं, अगर जरूरी है तो बोलो भाई, नहीं ना। इसलिए मैं अपने सब्र में, अपने संयम में बड़े प्यार से एक गुडविल एम्बेसडर बन के गया था। और मेरा यह मानना है दोस्त कि अगर पीस होगा तभी ये चीजें रुकेंगी, तभी हमारे जवानों की शहादत रुक सकती है। अरे भाई, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां जंगें नहीं होती और फौज हिफाजत के लिए होती, वहां लीडर नहीं लड़ते जाके भाई, फौजी लड़ते हैं। वो मेरी भी आत्मा की आवाज है। सो एक बात आप समझ लो, पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए गुडविल मैसेजेस होने बड़े जरूरी हैं। अगर गुडविल मैसेजेस नहीं तो फिर वो बैट देने क्यों चले गए थे? बंद कर दो, उस बैट को वहां नहीं देना चाहिए था, हाई कमीशन बंद कर दो। फिर जो ईद के ऊपर लोग हाथ मिलाते हैं, फौजी हाथ मिलाते हैं कि नहीं, मिठाई एक्सचेंज करते हैं कि नहीं, बंद कर दो। तो फिर भाई जो बसें जाती हैं, दोस्ती की बसें जाती हैं, मत चलाओ। वो कोई नो मैन्स लैंड नहीं है, वहां हजारों लोग जाते हैं यहां से, और हजारों लोग वापस आते हैं। और मैं किसी राजनीतिक बनने के उससे नहीं गया था। और जिस बात का आप मतलब कई लोग नेगेटिव बात करते हैं जिस बात की, तो भाई वाजपेयी साहब भी तो वहां दोस्ती का पैगाम लेके गए थे। फिर कारगिल का युद्ध 527 जवान मरे, तो क्या आप उनको ब्लेम करोगे? मोदी साहब बगैर परमिशन के वहां जाके नवाज शरीफ साहब को मिले, उन्होंने उनके साथ जफ्फी डाली, तो क्या भाई उनको राष्ट्रभक्त नहीं मानोगे? तो तब उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद पठानकोट हुआ था कि नहीं? और पाकिस्तान से आईएसआई वाले लोग यहां बुलाए गए थे कि नहीं? तो फिर उनको राष्ट्रभक्त नहीं मानोगे? हाँ, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। अगर जवानों की इतनी ही हमें दर्द है और जवान हमारी शान है, तो भाई जिस दिन पीस इनिशिएट होता है, जिस दिन टॉक्स इनिशिएट होती हैं, उसी दिन ये सब थम जाएगा। क्या ये किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वही ये बात कर सकता है अमन अमान की, और कोई बात नहीं कर सकता? मैं उधर गया, 99 से 100% लोग इस भ्रम को तोड़ रहे थे कि वहां कोई दुश्मनी है। इतना प्यार, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप सोच नहीं सकते। तो क्या कोई बाहर वाला बंदा ये समझ सकता था कि पंजाब दोनों इकट्ठे थे? पंजाब का मतलब क्या है? 5 दरियाओं वाला वो लैंड। वी आर हाफ पंजाबीज ब्रो, क्योंकि दो दरिया उधर बहते हैं, 2 दरिया इधर बहते हैं। कोई बाउंड्रीज बनाने से तुम कल्चर नहीं बदल सकते, तुम ज्योग्राफिक इकोनॉमी नहीं बदल सकते, तुम लोगों के खूनों को नहीं बदल सकते। अमन अमान और प्रॉस्पेरिटी, चाहे हमारा देश हो चाहे उनका देश हो, यही एक स्टेप है जो ये सब कुछ कर सकता है। टॉक्स आर द ओनली वे आउट। भाई मैंने 10 बार कहा है कि जो निर्णय सरकारों ने लेने हैं वो सरकारों ने लेने हैं, लेकिन मैंने कुछ मांगा वहां जाके? राजनीतिक तौर पे मैंने किसी को कुछ कहा? अगर कोई फौज का जनरल जाट जो मेरे पास आके मुझे आगे हाथ बढ़ा के कहता है कि करतारपुर साहब, जो श्रद्धालु सालों से तरस रहे हैं मिट्टी को चूम के,
आंखें भर के जाते हैं, उनके लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो भाई एक ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता तो क्या करूं, पीठ करके खड़ा हो जाऊं, क्या करूं? हाँ, मतलब एक ह्यूमन रिएक्शन है ना, कोई प्यार से दोस्ती से आपको यूं करे तो आप पीठ करके खड़े हो जाओगे। आप देश के लिए वहां, मतलब हिंदुस्तानी कितने थे वहां? 2, एक मेहता साहब और एक मैं। अगली कतार में कौन था? मैं। तो भाई क्या करता, तुम समझा दो बस। इट इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। वेयर हैव आई एनक्रोच्ड ऑन दैट टेरिटरी? मैं कोई वहां पॉलिटिकल बन के गया था? भाई मेरे को तो 10 बार निमंत्रण आया था, फिर मैंने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन ली, इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन नहीं आई, मैं रुका रहा, मैंने आपको बताया। फिर पाकिस्तान से परमिशन मांगी, उन्होंने वीजा दे दिया। उनके वीजा देने के 2 दिन बाद सुषमा स्वराज जी ने खुद रात को फोन करके मुझे कहा कि तेरी परमिशन हो गई है। कोई नियमों का उल्लंघन है? कोई नो मैन लैंड है वो? मेरी एक बात समझो, तो फिर ये टॉक्स बंद कर दें। तो फिर ये क्यों दोनों देश टॉक करते हैं? तो फिर क्यों दोनों देशों के मसले एक टेबल पे सुलझते हैं? तो फिर क्यों प्यार, मोहब्बत, अमन अमान हर नेशनैलिटी का एक जन्मसिद्ध अधिकार है? तो फिर यार मेरी बात समझो। प्राइम मिनिस्टर साहब योग की बात करते हैं, अहिंसा सबसे पहला यम है उसका, यम और नियम। ये मैंने नहीं बनाए, ये गांधी जी ने भी नहीं बनाए थे, ये पतंजलि ऋषि ने बनाए थे। ये हमारी ऋषियों मुनियों की गाथा है कि जो अटल जी की विचारधारा है, महात्मा गांधी की विचारधारा है। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਹੋ ਗਏ ਬਾਗੋ ਬਾਗ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।